آداب ناظرین، میں ذیشان رضوی روشنی ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبروں کے آغاز سے قبل نظر ڈالتے ہیں حدیث مبارکہ پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو کوئی بندہ اذان سننے کے وقت اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کرے: اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، کہ اے اللہ، اس دعوت تامہ، کاملہ اور اس صلاۃ قائمہ و دائمہ کے رب، یعنی اے وہ اللہ جس کے لیے اور جس کے حکم سے یہ اذان اور یہ نماز ہے، اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلہ کے خاص درجہ اور مرتبہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر سرفراز فرما جس کا تو نے ان کے لیے وعدہ فرمایا ہے، تو وہ بندہ قیامت کے دن میری شفاعت کا حقدار ہوگا۔ اب بڑھتے ہیں سرخیوں کی جانب۔ طلبہ سیاست کا مستقبل ہے۔ حیدرآباد کے اندور بھون میں NSUI کی 56ویں یوم تاسیس تقریب سے TPCC چیف MLC مہیش کمار گوڈ کا خطاب۔ ریاستی مشیر محمد علی شبیر کی دلچسپی کے سبب مالاپلی گرلز جونیئر کالج کی عمارت کی درستگی کے کاموں کا ہوا آغاز۔ آئندہ تعلیمی سال سے داخلوں کے آغاز کا امکان۔ غیر موسمی بارش کے سبب متاثرہ فصلوں کے کسانوں کو کانگریس حکومت سہارا دے گی۔ ڈچپلی منڈل کے سدھا پلی، سلم پلی، تانڈا دیہاتوں میں کسانوں کے فصلوں کا رورل MLA ڈاکٹر بھوپت ریڈی نے کیا مشاہدہ۔ آلور کے ریتو ویدکا میں آرمور MLA پی راکیش ریڈی نے مستحقین میں کلیانہ لکشمی و شادی مبارک چیکوں کی تقسیم۔ سماجی خدمت کے لیے ہر ایک فرد آگے بڑھے، دھن پال لکشمی بائی چیریٹیبل ٹرسٹ کے زیر اہتمام شہر میں امبل مرکز کو اربن MLA دھن پال سوریہ نارائنا گپتا نے کیا افتتاح۔ اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ جامع مسجد پوڈور جگتیال کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے، بیرسٹر اسد الدین اویسی کا CEO وقف بورڈ سے رابطہ۔ وہ فون پر بات۔ نظام آباد مجلس کے وفد کے ہمراہ مسجد کمیٹی نے کی دارالسلام میں اسد الدین اویسی سے ملاقات و نمائندگی۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد نے جگتیال ضلع کے کوڑا میلہ منڈل موضع پوڈور قومی شاہراہ پر واقع جامع مسجد کے تحفظ کو یقینی بنانے اور انہدامی کارروائی میں شامل نہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے، اور ریاستی وقف بورڈ CEO جناب اسد اللہ سے فون پر بات کرتے ہوئے اس خصوص میں متعلقہ حکام کو مکتوب روانہ کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ صدر مجلس بیرسٹر اویسی سے آج دارالاسلام حیدرآباد پہنچ کر قومی شاہراہ 563 پر قائم جامع مسجد پوڈور ضلع جگتیال کو شاہراہ کی توسیع میں شامل کرتے ہوئے مارکنگ کرنے پر انتظامی کمیٹی جامع مسجد کے ہمراہ صدر ضلع مجلس نظام آباد محمد فیاض الدین، معتمد ٹاؤن مجلس محمد شہباز احمد، صدر ٹاؤن مجلس آرمور محمد ظہیر علی اور شیخ خلیل احمد محمد سمیر، صدر مجلس جگتیال رضی الدین، کونسلر محمد نذیر، صدر مسجد کمیٹی خواجہ معین الدین، معتمد محمد سعد اللہ خازن، ممبرز شہباز میاں، ظہور الدین، فرحان، عامر، صادق نے ملاقات کی اور تفصیلات سے واقف کروایا۔ اس خصوص میں بیرسٹر اویسی نے CCO وقف بورڈ اسد اللہ سے جامع مسجد پوڈور کے تحفظ انہدامی کارروائی میں شامل نہ کرنے، وقف بورڈ کی جانب سے ضلع کلکٹر جگتیال اور نیشنل ہائی وے اتھارٹی کو مکتوب ارسل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ بعد ازاں صدر مجلس نے جناب ریاض حسین رکن قانون ساز کونسل مجلس کو ہدایت دی کہ وہ وفد کے ہمراہ CEO وقف بورڈ سے ملاقات کرتے ہوئے تحریری یادداشت پیش کرے۔ جناب ریاض حسین رکن قانون کونسل نے نظام آباد اور جامع مسجد کمیٹی پوڈور کے ہمراہ CEO وقف بورڈ سے ملاقات کی اور صدر مجلس کے مکتوب کو حوالے کرتے ہوئے مسجد کے تحفظ کو یقینی بنانے اور انہدامی کارروائی میں شامل نہ کرنے ضلع کلکٹر جگتیال
NHA अथॉरिटी को मकतूब रवाना करने की जरूरत पर जोर दिया। CEO ने तयखुन दिया कि वो जिला कलेक्टर जगतियाल और नेशनल हाईवे अथॉरिटी को मकतूब अरसल करते हुए जामा मस्जिद पोडूर के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएंगे। रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर की दिलचस्पी के सबब मालापल्ली गर्ल्स जूनियर कॉलेज की इमारत की दुरुस्तगी के काम फिर एक बार आगाज़। आइंदा तालीमी साल से दाखिलों के आगाज़ के इम्कानात। सरकारी गर्ल्स जूनियर कॉलेज उर्दू मीडियम मालापल्ली निजामाबाद की खस्ता हाल इमारत के ताज़ा नौ के काम का आगाज कर दिया गया है। ख्वाजा सफदार अली ने इस मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए बताया कि तकरीबन 2.5 साल कबल इन्होंने मुसलमानों के मसीहा जनाब मोहम्मद अली शब्बीर से एक वफद के हमरा मुलाकात करते हुए सरकारी गर्ल्स जूनियर कॉलेज उर्दू मीडियम की इमारत के 2 दहे कबल तामीर के बावजूद यहाँ कॉलेज के क़याम और मंजूरी में हाल रुकावटों से वाकिफ करवाने पर इन्होंने नूडा के जरिए फंड की मंजूरी अमल में लाते हुए इस इमारत को न सिर्फ कबल इस्तेमाल बनाने बल्कि यहाँ पर सरकारी गर्ल्स जूनियर कॉलेज उर्दू मीडियम के क़याम की राहें हमवार कर दी है। ख्वाजा सफदार अली ने इस ऐखान का इजहार किया कि इस इमारत के ताज़ा नौ के काम जल्द से जल्द मुकम्मल करते हुए आइंदा तालीमी साल से सरकारी गर्ल्स जूनियर कॉलेज उर्दू मीडियम में दाखिलों और तालीमी सरगर्मियों का आगाज अमल में आएगा। इन्होंने खुसूसी तौर पर मोहम्मद अली शब्बीर, हुकूमत तेलंगाना, महेश कुमार गौड, सदर TPCC और ओहदेदारों के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर खुदरतुल्लाह खान खमर, अख्तार अहमद साबिका नूडा डायरेक्टर, मोहम्मद रियाज अहमद, मिर्जा यूनुस बेग मौजूद थे। ज़िले कामारेड्डी बांसवाड़ा मंडल के इब्राहीमपट्टनम मुस्तखीर में पुलिस ने जुआ मराकज़ पर धावा करते हुए मुख्तलिफ अफराद को लिया हिरासत में। जिला कामारेड्डी बांसवाड़ा मंडल के इब्राहीमपेट मुस्तखीर पर महकमे पुलिस ने हासिल करदे इत्तला के फौरी बाद जुए के मरकज पर धावा करते हुए 3 अफराद को तहवील में लिया और इनके कब्जे से 3 बाइक, 2 साइकिल, 4 सेलफोन के अलावा 6,960 नकद रकमों को जब्त किया। माबाकी 11 अफराद ने राह फरार इख्तियार की। महकमे पुलिस ने 14 अफराद पर मुकदमा दर्ज किया और 3 अफराद को जमानत पर रहा किया। इन तीनों में आरिफ नामी शख्स ने घास की दवा पीकर इकदाम खुदकुशी की कोशिश की, तब इनके अफराद खानदान ने फौरी तौर पर बांसवाड़ा जनरल हॉस्पिटल को मुंतकिल करते हुए तिबी इमदाद फराहम की। पुलिस की जानिब से जदोकोब किए जाने के बायस दवा पीकर खुदकुशी की कोशिश करने का आरिफ की जानिब से बताया गया। फिलहाल आरिफ बांसवाड़ा एरिया हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज है। इन पर आयद किए गए इल्जामात को पुलिस के बेबुनियाद करार देते हुए इन्होंने आरिफ को जदोकोब नहीं किया बल्कि घरेलू झगड़ों की वजह से खुदकुशी की कोशिश करने का इजहार किया। సమాచారం వచ్చింది. దాంట్లో మా సిబ్బంది వెళ్ళి రైడ్ చేయడం జరిగింది. ఇందులో టోటల్ 14 మంది పేకాడుతూ ఉన్నారు. అందులో నుంచి మా సిబ్బందిని చూసి పారిపోవడం జరిగింది. దీంట్లో ఒక 3 వ్యక్తులు దొరకడం జరిగింది. ఇందులో 3 వ్యక్తుల వద్ద 6,900 రూపాయలు సీజ్ చేయడం జరిగింది. అట్లనే అక్కడ పేకాట స్థావరం దగ్గరనే పార్క్ చేసి ఉన్న బైకులు 9 బైకులు, 4 సెల్ ఫోన్లు, 2 సైకిళ్ళు సీజ్ చేయడం జరిగింది. వీరందరినీ ఈ ముగ్గురిని కూడా పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకొచ్చి కేసు నమోదు చేసి తదుపరి విచారణ కోసం జామీన్పై వదిలేయడం జరిగింది. अवाम की तहफ़्फ़ुज़ सेहत के लिए हुकूमत कोशा। कामारेड्डी कलेक्टर आशीष सांगवान। कामारेड्डी में प्रजापालना प्रगति प्लान के तहत मेडिकल डिपार्टमेंट के ज़ेर तमाम 6 अप्रैल से 11 अप्रैल तक इनेक़द अमल में लाए जाने वाले सेहत की तकरीब के मौके पर गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल से म्यूनसिपल दफ्तर तक इनेक़द अमल में लाए गए रैली को जिला कलेक्टर आशीष संगवान ने झंडा लहराकर इफ्तिताम अमल में लाया। इससे पहले स्पेशल कैंप के तहत हिफाजती मरकज़ और ट्रांसजेंडर कैंप को इफ्तिताह किया। इस प्रोग्राम में मेडिकल ऑफिसर रविंदर, हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट वेंकटेश्वर, DCHC विजय भास्कर रेड्डी के अलावा दीगर ने शिरकत की। म्यूनसिपल कारकुनान के मुताल्लिक़ा मसाइल के हल के लिए AICTU के ज़ेर एहतमाम म्यूनसिपल कमिश्नर से नुमाइंदगी। आज AITUC म्यूनसिपल एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स यूनियन के ज़ेर तमाम निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर को मसाइल पर मुश्तमिल एक याददाश्त हवाले किया गया। इस मौके पर AITUC जिला जनरल सेक्रेटरी वाई उमैया ने कहा कि मजलिस बल्दिया निज़ामाबाद में काम करने वाले कारकुनान को गुज़िश्ता सालों से मलबूसात न देकर लापरवाही की जा रही है। कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी के तहत काम करवाने वाले मजदूरों को बेपा के तहत ग्रुप को कायम करते हुए इनकी खातों में तनख्वाह जमा करने के अलावा ज़ेर अल्तवा अराकीन के लिए ज़रूरी चीज़ों के अलावा तेल और काम के आलात के अलावा बंडी थैला दिया जाए। मुंतकिल मुलाजिमीन के ज़ेर अल्तवा सिलेंडर लीव के अलावा 4D की अदायगी अमल में लाने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में यूनियन क़ायदीन सोपमा, बालाजी, चंद्रशेखर के अलावा कारकुनान ने शिरकत की।
बांसवाड़ा शहर के ताड़कोल रोड पर कायम करदा अम्बिल मराकज़ का रियासती मुशीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने किया इफ्तिताह। जिला कामारेड्डी बांसवाड़ा ताड़कोल रोड में रियासती ज़री मुशीर बांसवाड़ा एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कायम किए गए अम्बल सेंटर का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि अनजहनी जिरमैया की यादगार के तहत इनके फर्जंद की जानिब से 27 सालों से गरीब आवाम को धूप की तमाज़ात से बचाने के लिए अम्बल मरकज़ का क़याम अमल में लाने को काबिल मुबारकबाद होने का इजहार किया। बाद अज़ रियासती ज़री मुशीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने अम्बल मरकज़ को कायम करने वाले विवेकन्ना को मुबारकबाद पेश की। నాగల వెంకన్న గారు అంబలి కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేస్తారు. ప్రతి సంవత్సరం వేసవి కాలంలో దారిన పోయేటువంటి వ్యక్తులకు కానీ ఎవరన్నా ఆకలితో ఇబ్బంది పడుతున్న వ్యక్తులు కానీ इंदलवी मंडल गन्नाराम में धान खरीदी मराकज़ का रूरल रुकने असेंबली डॉक्टर भूपत रेड्डी ने किया इफ्तिताह। इंदलवाई मंडल के गन्नाराम में धान खरीदी सेंटर को रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि फी कुंटल मकई को 2400, धान का रेट फी कुंटल ए ग्रेड 2369 रुपये और बी ग्रेड 2369 रुपये खरीदी की जाएगी। बाद अज़ा क़याम अमल में लाए गए प्रोग्राम से रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने खिताब के दौरान कहा कि रियासती हुकूमत किसानों की जानिब से उगाई जाने वाली हर एक बीज को खरीदी करते हुए हुकूमत की जानिब से फराहम करदा तोहमात हवाले करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में पीसीसी डेलीगेट शेखर गौड, सोसाइटी सेक्रेटरी श्रीकांत, एडी प्रशांत के अलावा दीगर ने शिरकत की। साबिका कांग्रेस सीनियर कायद व वजीर जीवन रेड्डी पर टीपीसीसी चीफ महेश कुमार गौड़ ने किया तबसरा। टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने साबिका वजीर जीवन रेड्डी पर तबसरा करते हुए कहा कि जीवन रेड्डी को कांग्रेस पार्टी ने 14 बार बी फॉर्म हवाले किया। इसी हालात को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि जीवन रेड्डी पर तबसरा करने से अवाम इस तरफ तवज्जो देने की हालत में नहीं है। सीएम रेवंत रेड्डी को नाअहल करार देने की जीवन रेड्डी को कोई अखलाकी अहमियत नहीं है। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि कांग्रेस पर तबसरा करने से पहले जीवन रेड्डी माजी में बीआरएस पर किए गए तबसरे का जवाब देना चाहिए, जो आज गांधी भवन में इन्हें खुद अमल में लाए गए। मीडिया इजलास से खिताब के दौरान कहा कि बीआरएस और बीजेपी मुख्तलिफ नहीं है और ये दोनों पार्टियां कल भी जम हो सकते हैं। बीजेपी की क़यादत में किसी की भी हालत बेहतर नहीं होती है, इसलिए तब्दीली आने से बीआरएस इक़दाम से महरूम होने का इजहार किया। आलूर मंडल के रैतु वैदिका में आरमूर रुकने असेंबली पी राकेश रेड्डी ने मुस्तहिकीन में कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक चेक्स की तकसीम। आलूर मंडल के रैतु वेदिका में आलूर मंडल से मुताल्लिक़ा कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक चेकों की तकसीम पर मबनी प्रोग्राम में आरमूर एमएलए पी राकेश रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर एमएलए ने तकरीबन 37 कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक चेकों की मुस्तहिकीन में फराहमी अमल में लाई। इस प्रोग्राम के मद्देनजर आरमूर एमएलए पी राकेश रेड्डी ने खिताब के दौरान कहा कि गुप्ता से आलूर के लिए डबल लाइन रोड और कल्लेड़ा से आलूर के और आलूर गुप्ता के लिए डबल लाइन रोड की मंजूरी अमल में लाने के लिए कहते हुए कहा कि आलूर देहात की बाईपास रोड निहायत जरूरी है, इसलिए दही अवाम के फैसले से सड़क की तामीर के लिए खुसूसी दिलचस्पी लेने के लिए दरकार फंड की मंजूरी अमल में लाने के लिए कोशिश करने का इजहार किया। యూరియా ఎంత సబ్సిడీ ఇస్తున్నదంటే రైతు గురించి ఇస్తున్న తప్ప దొంగలకు అమ్ముకోవడానికి ఇస్తలేదు. రైతు పేరు చెప్పి 4 లక్షల కోట్లు దోసుకుంటున్నారు. ఇట్లా దొరికిపోతుంది. కళ్ళు కనబడతాయి, చేతుల ఫింగర్లు కనబడతాయి. ఇప్పుడు ఆధార్ ఉన్నది. ఆధార్ వేసుంటే ఈ దేశం సగం ఎన్నో రకాల ఉపయోగాలైన ఇతని ఏళ్ళు దొరికిన ఈ వేలు ముద్రలు ఈ ప్రపంచంలో ఒక మనిషికున్న వేలు ముద్రలు ఇంకొక మనిషికి ఉండేవి. అందుగురించి నీకు ఎక్కడ పోతే అక్కడ మీ దగ్గర తీసుకుంటున్నారా? రేషన్ షాప్ కాడ తీసుకుంటున్నారా? ఇవన్నీ మీకు అర్థం కాని భాష. ఈ వేలుకున్న ఏవైతే ఉన్నాయో గీతాలు ప్రపంచంలో ఇంకొక మనిషికి ఉండేవి. కన్ను పెట్టి తీసుకుంటున్నారా? కన్ను సాఫ్ట్వేర్ ఈ కన్ను ఏదైతే ఉంటుందో ప్రపంచం ఇంకొకరికి ఉండదంట కన్ను. ఇవన్నీ పేద ప్రజల పేర్లు చెప్పి 50-60 ఏళ్ళ నుంచి దొరికినట్టు దోసుకుంటున్నారు కాబట్టి రాను జరుగుతున్నది. ఎక్కడైనా మీకు రైతులకు ఇబ్బందులు వస్తే స్థానిక అధికారులు అని ముఖ్యంగా ఆలూరు వాళ్ళకు కూడా ఇప్పుడు విజయ్ అందరికీ చెప్పండి. ఇప్పుడు ఒకటి చిన్న ఇష్యూ వచ్చింది, మీరు గ్రామస్తులు నిర్ణయించుకోండి. ఇప్పుడైతే ఆలూరుకు గుత్పెకు డబుల్ రోడ్ శాంక్షన్ అయింది, అయిపోతే వర్క్ చాలా అవుతుంది. ఆలూరుకు కల్లెడకు డబుల్ రోడ్ శాంక్షన్ అయిపోయింది, అది వర్క్ చాలా అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇంకొక 2 కోట్లు పెట్టాను ఆలూరుకు బైపాస్. ఈ బైపాస్ అనేది మీరు కొద్దిగా నిర్ణయించుకోండి గ్రామస్తులు. ఇప్పుడు ఎట్లయితే వేలుమలకు ఉన్నదో శాంక్షన్ చేసి పెడతారు. ఇంకేదైనా ప్లాన్ చేసుకుంటే మేము భవిష్యత్తులో వర్క్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నాం. ఆలూరు ఊరంతా గుర్తిపోయింది లోపల. అది ఇప్పుడు 2 కోట్లు అయితే పెట్టినా
ఇప్పుడు దీనికి 10 పట్టణాలు కానీ ప్రభుత్వం ప్రపోజల్ పెట్టాం. ఇప్పుడైతే మీకు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒక మేడపల్లికి రోడ్ అవుతుంది, మేడపల్లి అయిపోతుంది. మేడపల్లి ఒకటి దయచేసి ఒక మాట, ప్రభుత్వం 2.5 సంవత్సరాలు అయింది. ఫస్ట్ ప్రాధాన్యత క్రమంలో ఫస్ట్ ఇల్లు ఊరుకు 10, 20, 30, 40, 50 కట్టుకుంటే వాళ్ళందరికీ ఇస్తున్నాం. गैर मौसमी बारिश के सबब तबाहशुदा फसलों से अवाम परेशान ना हो, किसानों के साथ हर वक्त कांग्रेस है और इनका सहारा बनेगी। रूरल रुकने असेंबली डॉक्टर भूपत रेड्डी का इजहार। डिचपल्ली मंडल के सुद्दापल्ली सलमपल्ली टांडा देहात में वाकई किसानों के फसलों का रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने मुशाहिदा किया। इस मौके पर इन्होंने गैर मौसमी बारिश से मुतासरा किसानों को सहारा देने के ताल्लुक से तयखुन दिया और कहा कि किसी को भी मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी किसानों की हर हाल में मदद करने के लिए तैयार होने का इजहार किया। बाद रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने गैर मौसमी बारिश के सबब मुतासरा फसलों का मुकामी बरखी रेवेन्यू के अलावा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अहदेदारों के हमरा मुकम्मल तौर पर जायजा हासिल किया। इन्होंने कहा कि इस माह की 4 तारीख को होने वाली बेवक्त बारिश की वजह से हल्का के किसानों के फसलों का नुकसान हुआ। इसी दिन फौरी तौर पर महकमे ज़राअत, बरखी और रेवेन्यू महकमे के अहदेदारान से तबादला ख्याल करते हुए अहकामात जारी किए जाने का इजहार किया। इंदिरा भवन में NSUI की 56वीं यौम तासीस तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद। TPCC चीफ महेश कुमार गौर ने शिरकत करते हुए तलबा की हिम्मत अफजाई। इंदौर भवन में NSUI की 56वीं यौम तासीस तकरीब शानदार पैमाने पर मुनक्किद की गई। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर TPCC सदर MLC महेश कुमार गौर ने शिरकत की। इस मौके पर महेश कुमार गौर ने खिताब के दौरान NSUI क़ायदीन तलबा को यौम तासीस की मुबारकबाद पेश की और कहा कि तलबा की सियासत मुस्तकबिल की बुनियाद होने का इजहार किया। इन्होंने सियासी तौर पर आने वाले मौके से फायदा हासिल करने की ताकीद की। इन्होंने कहा कि कौमी सतह पर उभरने वाले बहुत से क़ायदीन NSUI से ही उभरने के ताल्लुक से याद दहानी की। नौजवान अवामी खिदमत के लिए आगे आए, हम उनके साथ हैं। अर्बन रुकने असेंबली धनपाल सूर्य नारायणा ने शहर में अंबिल मराकज़ के इफ्तिताह से किया खिताब। आज धनपाल लक्ष्मीबाई विट्ठल गुप्ता चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़रिए तमाम शहर के PLMS पेट्रोल बैंक के रूबरू अंबल मरकज़ का MLA धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर MLA ने कहा कि मौसम गर्मा को मद्देनजर रखते हुए शहर के अवाम को धूप की तमाज़ात से हिफाजत के लिए अंबल की तकसीम अमल में लाने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि मरकज़ में गुज़िश्ता 12 सालों से जारी रहने वाले प्रोग्राम को हमारे ट्रस्ट की जानिब से हर मुमकिन तौर पर ताउन देने का इजहार किया। ట్రస్ట్ ధన్పాల్ లక్ష్మీబాయి విఠల్ గుప్తా చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ద్వారా ఈ అంబలి కార్యక్రమము చేయడం అనేది నిజంగా మా అదృష్టంగా భావిస్తూ ఉన్నాం. ఈ అంబలి పంపిణీ కార్యక్రమము ఒక నెల రోజుల పాటు, ఆ తర్వాత ఇంకా మండు టెండలు ఉంటే దాన్ని ఇంకా ఒక 10-15 రోజులు కూడా పంపిణీ చేయడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా దీనికి సహకరిస్తున్న మార్చి రమేష్ గారు, అంటే మేము సేవ చేయడం గొప్ప కాదు, దానికి సహకరించే వాళ్ళే గొప్ప. మా సోదరుడు మార్చి రమేష్ గారికి ముఖ్యంగా ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటా ఉన్నా. खबरों के इख्तिताम से कबल नज़र डालते हैं अहम सुर्खियों पर। तुलबा सियासत का मुस्तकबिल है। हैदराबाद के इंदौर भवन में NSUI की 56वीं यौम तासीस तकरीब से TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौर का खिताब। रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर की दिलचस्पी के सबब मालापल्ली गर्ल्स जूनियर कॉलेज की इमारत की दुरुस्तगी के कामों का हुआ आगाज। आइंदा तालीमी साल से दाखिलों के आगाज का इम्कान। गैर मौसमी बारिश के सबब मुतासिरा फसलों के किसानों को कांग्रेस हुकूमत सहारा देगी। डिचपल्ली मंडल के सुद्दापल्ली सलमपल्ली टांडा देहातों में किसानों के फसलों का रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी ने किया मुशाहिदा। आलूर के रईतु वेदिका में आर्मर MLA पी राकेश रेड्डी ने मुस्तकीन में कल्याणा लक्ष्मी व शादी मुबारक चेकों की तकसीम। समाजी खिदमत के लिए हर एक फर्द आगे बढ़े। धनपाल लक्ष्मीबाई चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़ेर तमाम शहर में अंबल मरकज को अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने किया इफ्तिताह। आज के लिए इतना ही, दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।